All right. This was the homework. First part we discussed yesterday. Either you do net capacitance, all are identical. You do it by C by N, or main formula 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C. Identical है सारे. That will be 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9. है ना? तो यहाँ पर फार्मूला लिखने के बाद पहले ऑलवेज राइट फार्मूला. CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So here 9, 9, 9. So 3 times 3 by 9. So it will be 1 by 3. Okay. Reciprocal हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. Or there itself you do the reciprocal. It will be 9 by 3. That's 3. And so V will be V1 plus V2 plus V3. That's equal to 3 V1 because all are identical. Because तीनों कैपेसिटर्स जो हैं दे आर आइडेंटिकल, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा. V2 will also be equal to V1, V3 will also be equal to V1. Therefore, 3 V1. So V is 120 given, and therefore V1 will be 120 by 3. That comes to be 40 volt. Equally divide हो जाएगा. 120 volt will be equally divided 40 each because all are identical. Otherwise कैसे निकलते हैं? फिर चार्ज निकलना पड़ेगा. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. If they are unequal, the potential, how to find the potential is the next question. All right, so far. तो अनइक्वल में देखो ये वाला था. इसके लिए क्या बताया था मैंने कि पहले चार्ज निकाल लेना. चार्ज विल बी C net into V net. C net is 2. Total potential is 9. It comes to be 18. Now V1 will be Q by C1. Q is 18. This is calculated. And 3 is the capacitance. This comes 6. So V2 कितना होगा? V2 will be 9 minus 6 is equal to 3. या फिर सेम फार्मूले से V2 will also be calculated by Q by C2. Q is 18. Divide by 6. That's coming to be 3 volt. दोनों ऐड करके देख लो. 6 plus 3 is equal to 9 volt. That is the potential difference of battery. All right. Next one is, note down this, note down quickly. All right. Okay. So, okay. इसमें one more point let me ask you in this question. देखो, my question is this. C part ये है कि find the potential of point B. Can you see midpoint? If right hand side is earth, यहाँ पे अर्थ कर दिया. If right hand corner, यहाँ पे अगर अर्थिंग करते, इसका मतलब क्या होता है? This negative terminal will have zero potential. C will also have zero potential because ये connecting wires हैं. Potential doesn't drop in the connecting wire. They are supposed to be ideal. उसमें कोई resistance नहीं होता है या कोई capacitance नहीं है connecting wire का. So there is two way of giving this question, this type of question. या तो वो if I tell you negative terminal को zero potential ले लो,
या यहाँ पे अर्थ कर दो। नेगेटिव टर्मिनल अगर जीरो पोटेंशियल पे है तो सी भी जीरो पे होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं होगा। नो कैपेसिटर इज कनेक्टेड। कैपेसिटर में ड्रॉप होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी ड्रॉपिंग, पोटेंशियल डिफरेंस विल कम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा। 9 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ? V1 इज व्हाट? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर 6 का ड्रॉप हुआ, और V2 में कितना ड्रॉप हुआ? 3। तो टोटल 9 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। उसके बाद कुछ नहीं बचा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई ड्रॉप होने के लिए आई। आइदर आई गिव यू अर्थिंग हियर, or I give you negative terminal is at zero potential. Both are same. So my question is this: find potential of midpoint B if negative terminal of battery is at zero potential. If negative terminal of cell is at zero potential. ठीक है, तो this you can try. Simple question है base. I have explained you all the points. If you have heard them carefully, you could have come to know what is the answer. ठीक है, तो just think about this point also. It will be of useful somewhere. ठीक है, so note down this point, then we'll see further. Okay, done. Okay, तो सिमिलर क्वेश्चन इज दिस, जैसे हमने V निकाला था इसमें, वी फाउंड आउट, पहले CS निकाला फिर V1 V2, तो इसमें भी V1 V2 निकलना। इसमें ओनली थिंग वैल्यूज आर नॉट गिवन, C1 के टर्म्स में निकलना पड़ेगा। इफ C1 एंड C2 आर नॉट गिवन, तो योर आंसर V1 विल बी इन टर्म्स ऑफ C1 एंड C2 and V2 will also be in terms of C1. Same method बिल्कुल। So refer diagram and find V1 and V2. That's they are the potential difference across the each capacitor in terms of C1, C2 and V. So exactly same method follow करो, CS निकाल लो, then ये V1, V2. So in general terms also, you should know what is the answer. Then we'll conclude the result. कि potential drop होता है ना, it is inversely proportional to the it is potential drop is at the inverse ratio of the capacitance. यहाँ पर जो V1 होगा that will be directly proportional to C2, and V2 जो आएगा that directly proportional to C1. तो inverse ratio of capacitance में drop होता है. So that conclusion we will write. So try to do the similar question again in terms of C1, C2 and V1, V2. I mean in terms of C1, C2 and V. ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो and do it again as it was the
Similar to the previous question, it is. Okay, noted. Okay. So now we are going to see the parallel combination. Previously, yesterday we have seen series combination in that net capacitance is decreasing. Now we'll see in parallel net capacitance will increase in this combination. So let's see how to get this net capacitance. कैसे निकालेंगे? Can you try parallel combination में? Can you try? थोड़ा सा try करो, then I am writing. Try to get net capacitance. Then I will. So you can see here कि चार्ज जो है डिवाइड हो रहा है अभी. Charge coming here, charge drawn from the battery is divided into two parts. Q1 goes to C1 and Q2 goes to C2, है ना. But potential remains same. देखो यहाँ से यहाँ तक potential है V, तो both are connected together. यहाँ पे देखो इनका common terminal है, दोनों एक साथ है. Right side में दोनों के terminal एक साथ है. You can make it like this also. ऐसा भी बना सकते हैं. Both are, ये C1 है C2 है. So you can see दोनों का one terminal is connected on one side, both other right side के terminals are connected together, then they are connected to the battery. So both are getting the same potential. वो दोनों को potential difference same मिल रहा है. Can you see? Both are, either you make this diagram or other one, doesn't matter. तो दोनों को potential same मिल रहा है. इसको भी V1, इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, because you see the connection here. Both are connected to battery V parallel to it. So पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने व्हाट आई हैव रिटन इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V रिमेन सेम. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V रिमेन सेम ऑन ईच कैपेसिटर. तो दे उसमें क्या सेम था? प्रीवियस केस में चार्ज वाज सेम, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. So this is the important point for you. Okay. Now what next? उसके बाद एक में चार्ज Q1 गया, तो हम कैन वी राइट टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, जस्ट लेट मी टेल यू, चार्ज Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q क्या होता है? CV. तो दिस विल बी C1V, दिस विल बी C2V, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट नेट चार्ज इज, नेट कैपेसिटेंस इज CP इंटू V. इसको सिंगल उससे कनेक्ट, इसको दोनों को हटा के CP लगा दो. एक सेम बैटरी सेम टोटल चार्ज, यहाँ पे CP आ जाएगा. V विल गेट कैंसल, तो CP विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. दैट इज अ फर्दर सिंपल डेरिवेशन. तो देखते हैं. You can see let CP is the net capacitance
we will have C1, Q1 will be C1 V1, Q2 will be C2 V2. From figure we can write Q1 plus Q2 is equal to Q. Q में हमने क्या लिखा? Cp into V, है ना? इसको हम सिंगल, suppose if we replace it with the single कैपेसिटर, ठीक है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस Cp हो जाएगा. बट चार्ज शुड रिमेन सेम इन द सर्किट. सेम चार्ज शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम बैटरी, है ना? तो इसको अगर हम सिंगल उससे रिप्लेस करें, इट विल बी लाइक दिस. तो इट विल बी Cp into V. ये सिंगल कैपेसिटर है, V रिमेन सेम, तो V कैंसिल हो गया, तो वी आर गेटिंग दिस. क्या कंक्लूजन है? नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. नेट कैपेसिटेंस उसमें क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था. इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है. सिंपल कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं कि दे आर एडेड अप. ऑल द कैपेसिटेंस आर सिंपली एडेड अप. ठीक है, तो इजी इसमें. अच्छा, रेजिस्टेंस में हमें सीरीज में मिला था. डू यू रिमेम्बर? इन केस ऑफ रेजिस्टेंसेस in 10th standard we have seen R1 plus R2 plus R3 and so on. सीरीज में ऐसा था, यहाँ पे पैरेलल में ऐसा है. बिकॉज वी आर यूजिंग द डिफरेंट फार्मूला. वहां पे ओम्स लॉ से डिराइव किया था, V इज इक्वल टू IR, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला वी आर यूजिंग? V इज इक्वल टू Q, आई मीन C इज इक्वल टू Q बाई V. वहां पे डायरेक्ट रिलेशन था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. तो यू हैव टू बी रिमेम्बरिंग ये रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट था और कैपेसिटेंस का बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर as far as series and parallel combinations are concerned. Anything you want to ask here? और कौन सा पॉइंट याद रखना है? पैरेलल में देखो देखो एक और पॉइंट सुन लो यहाँ पे. इट इज नॉट दैट कि कैपेसिटेंस हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी इन पैरेलल. उनके दोनों एंड्स कनेक्ट होने चाहिए एक साथ. देखो यहाँ पे एक साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक साथ, तो वो भी होना चाहिए. केवल पोटेंशियल डिफरेंस एक पता लगा एक कहीं और कनेक्टेड है सर्किट में. व्हेन वी हैव द many capacitors connected in circuit, so one is at one place, other is at different places having the same potential, will not be in parallel. तो दोनों के ends भी connected होने चाहिए, and ends of the both should be connected together, है ना? both ends should be connected together. That point I am not writing here, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, but you can see clearly दोनों के लेफ्ट हैंड एक साथ कनेक्टेड है, राइट हैंड से एक साथ कनेक्टेड है. ठीक है, कुछ कैपेसिटर्स जो है उसमें पोलर कुछ कैपेसिटर्स में ऐसे लिखा रहता है, ये कैपेसिटर है ना, दिस इज द वन टर्मिनल, दिस इज अदर टर्मिनल, तो लिखा रहता है वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. तो यू हैव टू रिमेंबर पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना ये, और नेगेटिव को. तो दे आर कॉल्ड पोलराइज्ड कैपेसिटर हैविंग पोलैरिटी प्लस एंड माइनस एज बैटरी, है ना? पोलराइजेशन का मतलब वहां पर क्या होता है, उसमें प्लस माइनस लिखा है. कुछ कैपेसिटर्स जो होते हैं उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है, नथिंग इज देयर, है ना? सिलिंड्रिकल ऐसा हमने देखा था, कैपेसिटर के डायग्राम देखे थे, तो कैपेसिटर के फोटो देखे थे इनफैक्ट, तो उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है. तो दे आर यूज्ड इन एसी सप्लाई. वो एसी सप्लाई में यूज करते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे आफ्टर मैग्नेटिज्म. ठीक है, 5th चैप्टर है वो. तो उसमें दे आर नॉन पोलरिक, मतलब उनमें प्लस माइनस नहीं लिखा रहता है. बट इसमें डीसी सप्लाई में, जैसे डीसी सप्लाई कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है, सेल फोन. अच्छा, डीसी सप्लाई बोलते हैं उनको, बैटरी वाली सप्लाई, है ना, विच वी आर यूजिंग हियर. तो दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, है ना, सेल फोन में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं. और एसी सप्लाई कहाँ यूज करते हैं? डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज. घर में जो फैन चल रहा है, इट इज बाय द एसी विच वी आर गोइंग टू सी इन द 5th चैप्टर. एंड जो लैपटॉप एंड आईपैड एंड सेल फोन के अंदर जो बैटरी है, एंड कार के अंदर, दैट इज डीसी सप्लाई, दैट इज द 3rd चैप्टर.
करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो इसमें पोलरिटी का ध्यान रखना पड़ता है. प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है. इसमें यहाँ पे प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस, इधर माइनस है. ठीक है, तो वी गॉट द other formula also. Let's do some numericals of this also. Then we'll do the combined numericals. You have to identify which are series and which are parallel. तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और दोनों के एंड से एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा है ना. एंड बोथ आर कनेक्टेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस. Can you do this question quickly? Read it and do it fast. Just it should not be taken more than 20 seconds. सर क्या आ गया? n into c सही है. तो Cp is equal to C1 plus C2 and so on up to n terms. तो C plus C plus C कितने बार है? n times. nc n terms है. जब 2 होता तो 2 आ जाता, 3 कैपेसिटर होता 3 आता, n कैपेसिटर तो n into c आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन. सीरीज में क्या आया था? c by n आया था, याद है. यहाँ पर क्या आया? n into c आया. तो we don't have to write all formulas and directly add कर सकते. Suppose you can see 3 capacitors of 10 ohm connected in parallel. तो 3 into 10 30 हो जाएगा सीधा. It is not, in fact, it is formula is also very easy. You can just do it with this, no problem. ठीक है, no problem. So let's see further question to some more questions of parallel combination. ओके, ये होमवर्क नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance? टोटल कितना हो जाएगा? 2 plus 3 plus 4 9 picofarad. डायरेक्ट ऐड करना है उसमें, और क्या. इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है ना. फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट. सेकंड पार्ट में चार्जेस निकालने. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? चार्ज निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे, V1 V2 V3. अच्छा, इसमें V भी निकालना है. फाइन. अच्छा, डिटरमाइन द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर. थर्ड पार्ट में डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. ये दोनों पार्ट ये होमवर्क में है. फर्स्ट पार्ट तो हमने बता ही दिया तुमको. रिमेनिंग 2 पार्ट आल्सो you can do it very easily. Just only one formula we are using है ना. C is equal to Q by V. या अगर इसको ऐसा लर्न करना है, Q is equal to CV. But only thing you have to remember that जब हमें we can apply this formula for particular capacitor also for the whole circuit. So be careful. जब हम ये लगाते हैं ना Q is equal to CV, either you are using for the whole circuit or you are using the part of the circuit. तो वो देखना पड़ता है ना. ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं लगा देना. Q is equal to CV वाला फार्मूला, और C is equal to Q by V, और V is equal to V क्या आएगा यहाँ से? Q by C आ जाएगा. बेसिकली कैपेसिटेंस इज चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल डेवलप्ड. तो यही फार्मूला हम साइड चेंज कर करके लगा रहे हैं. एंड वी आर यूजिंग इट फॉर द पार्ट ऑफ द सर्किट प्रॉपरली, एंड वी आर यूजिंग फॉर द होल सर्किट, है ना. तो वो तुम्हें देखना पड़ता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी. नोट इट डाउन, सॉल्व एंड सेंड करो उसको.
ट्राई टू मेक डायग्राम आल्सो, डायग्राम बनाएंगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये पार्ट, बहुत बहुत इजी हो जाएगा। और ये भी विदाउट डायग्राम करेंगे तो यू विल हैव सम कंफ्यूजन। तो बेटर मेक रफ डायग्राम टू सॉल्व द पार्ट्स बी एंड सी पर्टिकुलरली। ठीक है, तो पार्ट सी आल्सो यू हैव टू डू, determine the potential difference across each capacitor. So moving on to the next one. So this is solid example. Let us discuss here. Let us see what are the key points here. Then you can complete it. देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है 500 वोल्ट की, तो दे हैव शोन इट लाइक दिस, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट का है, मींस that source of 500 volt is connected, and what will happen here? अच्छा ये क्या है, इसका नेट कैपेसिटेंस जस्ट ट्राई करो, लेट मी रीड इट। नेटवर्क ऑफ 10 microfarad capacitors are connected to 500 volt supply as shown in the figure. Determine the equivalent capacitance. Net capacitance निकालना है, the charge and each capacitor निकालना है. Note the charge on capacitor is, note the charge on capacitor is the charge on plate with higher potential equal and opposite charge on the plate with the lower potential. तो जो Q निकालना पड़ता है, एक प्लेट पे प्लस Q होता है, एक पे माइनस Q होता है, तो हमें न्यूमेरिकल में प्लस Q लेके सॉल्व करना पड़ता है, माइनस नहीं लेना पड़ता। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज ऑलवेज प्लस Q। नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मैंने बताया था Q माइनस Q, दैट इज 0। So we are not talking about net charge on each capacitor, we are talking about charge on each capacitor, that is Q, positive value. तो देखो इसको जस्ट गो थ्रू, ट्राई टू डू योरसेल्फ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखो क्या है ये सब, दिस इज गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल। ट्राई टू डू योरसेल्फ, देखो इसमें कौन से सीरीज हैं कौन से पैरेलल हैं। सीरीज के लिए सीरीज का फार्मूला लगा दो फटाफट, पैरेलल के लिए उसको पैरेलल का लगाओ फार्मूला। आ गया फर्स्ट पार्ट डन, गॉट इट। जस्ट इट शुड बी इन 30 seconds फर्स्ट पार्ट। बोलो, देखो इधर, यहां से जो चार्ज जाएगा, देखो सपोज Q goes in this in the upper branch, तो वो Q ऐसे जाके फिर इधर भी जाएगा Q, इसमें भी Q जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ब्रांच टू गो, दिस इज द सिंगल ब्रांच, इन ऑल 3 कैपेसिटर्स विल हैव द सेम चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये सीरीज में है, सीरीज में है कि नहीं, बिकॉज वॉट एवर द चार्ज गोज हियर आर इन पैरेलल, तो सीरीज सॉरी, तो सी एस का फॉर्मूला क्या है, C बाई एन। यहाँ पे देखो आइडेंटिकल है, तो जस्ट वी आर सेविंग द टाइम, कितना आएगा 10/3, तो ये हो गया ऊपर वाली ब्रांच का, है ना। तो अभी इनको तीनों को हटा दो, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अभी तीनों हट के यहाँ पर इसके साथ ये 10/3 का लग जाएगा, और ये 10 है। अभी इन तीनों को 10/3 से रिप्लेस कर दो, और नीचे वाला कितना 10 है, सर्किट बिकम्स लाइक दिस नाउ। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नेट विल बी, ऊपर 10/3 आ गया और नीचे वाला 10 है, तो दिस बिकम्स कितना रहा, 40/3, 13.33, और यू कैन लीव इट लाइक दिस। माइक्रो में है, हाँ माइक्रो फैराड में, गॉट इट। तो इनको जब तीनों का नेट निकाल लिया, तो इसको तीनों को हटा दो और उसका एक इक्विवेलेंट लगा दो इसके साथ, ऐसा, ठीक है। अभी 2 बच गया, ये 10/3 है, नीचे वाला 10 है, तो पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। नाउ चार्ज निकालना है, चार्ज इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, देखो ये 500 वोल्ट है, सपोज हमने एक मिनट,
सपोज हमने तो सपोज हमने इसमें चार्ज क्यू ले लिया और इसमें क्यू डैश ले लिया, तो इसमें अभी से सभी में सेम चार्ज जाने वाला है, तो इसको वैसे भी हमने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर लिया था, कितने 10/3 से। तो अभी बचा क्या, या क्यू निकाल सकते हैं, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना है 10/3, तो क्यू विल बी CS इंटू वी, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक 500 वोल्ट मिल रहा है ऊपर वाली ब्रांच को भी। कैन यू सी 500 वोल्ट इज टू दिस ब्रांच आल्सो और टू लोअर ब्रांच आल्सो, तो ऊपर वाले ब्रांच में भी 500 यूज करेंगे हम। CS कितना है 10/3 इंटू 500, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, Q इज इक्वल टू C, कैलकुलेशन कर लेना ये 5000/3 माइक्रो कूलम, और इसको 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.67 आ रहा है क्या, इंटू 10⁻³ कूलम, विल सी द आंसर। और नीचे वाले ब्रांच में Q डैश इज, इसको भी पूरा 500 वोल्ट मिल रहा है, नीचे से देखो Q डैश इज C, that is 10 V 500, तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, वी कैन सी द आंसर, और ये तुम्हारा कितना आ गया 13.33 माइक्रो। तो समझ में आया इंटरप्रिटेशन, कुड यू गेट इट, इसको हमें दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, पार्टली उसका नेट इसके साथ पैरेलल में है, so that you must have done the question in 10th standard for the resistances. Interpretation remains same, सीरीज एंड पैरेलल का जो इंटरप्रिटेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो सेम रहेगा, जैसा रेजिस्टेंस में किया हम लोगों ने वैसे ही यहाँ भी। तो देखते हैं आंसर कितना दिया है इसका, 13.33 है फर्स्ट पार्ट का आंसर, और ये 1.67 को उन्होंने 1.7 राउंड ऑफ कर दिया है ऊपर वाली ब्रांच में, और नीचे वाली ब्रांच में 5 है, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया उसको 1.67 है। बट मेन थिंग इज, कुड यू गेट दिस, हाउ वी आर सॉल्विंग, वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, सेम फार्मूला Q इज इक्वल टू CV वाला है, कैपेसिटेंस वाला फार्मूला, पार्टली फॉर द दिस सर्किट एंड अगेन फॉर दिस सर्किट। अगर टोटल चार्ज, अच्छा ये कितना होगा, हाउ मच इज द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, इफ आई आस्क यू, that will be sum of this plus this, or we can also find out net charge drawn from the battery is C net into V net। C net अपना ये आ गया है 40/3, V 500 है, तो डायरेक्ट भी चार्ज ड्रॉन निकाल सकते हैं, या फिर इनको ऐड कर दो, बिकॉज सेम चार्ज इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ब्रांचेस। तो टोटल चार्ज नहीं पूछा है तो नहीं निकाल रहे हम लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पर व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज दिस, कि सेम फार्मूला जो Q इज इक्वल टू CV है, वी आर यूजिंग इट फॉर द पार्ट ऑफ द सर्किट, और वी कैन यूज इट फॉर द होल सर्किट। होल सर्किट में होल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा और कंप्लीट वोल्टेज लेना पड़ेगा, और पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए फॉर दैट पार्ट हाउ मच इज द पोटेंशियल, है ना, हाउ मच इज द नेट कैपेसिटेंस, देन हाउ मच विल बी द चार्ज, वी कैन फाइंड आउट। आर यू गेटिंग इट? एनी प्रॉब्लम इन दिस? Just ask your problems, then we'll move on to the next one, because same thing is going to happen in the next chapter also. Resistance में भी same करने वाले हम। If you understand here, the next chapter जो है third chapter of resistance, it will be simple as far as circuits are concerned. All right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll see some more questions. तो ये तुम्हारा solid example number 9 हो गया। Okay, what about this question? What about this? Find the equivalent capacitance of combination of capacitors between point A and B. A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है। As shown in the figure, also calculate the total charge that flows
in the circuit when 100 volt battery is connected between A and B. तो टोटल चार्ज निकालना तो आसान हो जाएगा. Q will be C net into V. V दिया इन्होंने 100, तो C net निकालना मेन है. तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना मेन है. तो इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से सीरीज है और कौन कौन से पैरेलल है. आई एम गिविंग यू टाइम टू solve it net capacitance के लिए, then I will show you the solution. Orally also it can be calculated. As far as I think, इसका आंसर ओरल भी निकाल सकते हैं without using the pen. Let me see. एक मिनट. 60 by 3 है ना, 20. हाँ, orally आंसर आ रहा है. Without using the pen, you can get the answer. Sir, 20 microfarad. Yes, first answer is coming 20. Let me get the other answers. So the second part is 2 into 10 to the power minus 3 coulomb. The first part is what? First part is 20 microfarad. And the second part is 2 into 10 to the power minus 3 C. ठीक है. So first part is coming 20 microfarad. What about others? Okay. So you can see here, देखो यहाँ पर देखो 20 is right answer. देखो यहाँ से देखो ये यहाँ से जो चार्ज आएगा, that will go here, that will go here, that will go here, that will come here, है ना. यहाँ से जो चार्ज है, it is going to be same, है ना. इसका मतलब क्या है? This, they all three are in series. इसको सबको हटा के सिंगल कैपेसिटर लगा दो यहाँ पर. कितना आ जाएगा इसका? C/N वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं. C/N, N कितना है? 3, 20 आ गया, है ना. तो ये सबका मिला के 20 आ गया. और ये दोनों पैरेलल में है. कैन यू सी? यहाँ पर एंड्स कनेक्टेड है और पोटेंशियल एंड्स जब कनेक्टेड होते हैं आपस में दोनों साइड के, तो वो पैरेलल में होता है. अभी यहाँ पे पोटेंशियल बैटरी नहीं लगी है, बट व्हेन moment you see both the ends are connected on one side, other ends are connected other side, तो ये पैरेलल होते हैं. पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाएंगे C1 plus C2, तो ये 20 आ जाएगा. इधर का 20 और इधर का सबका 20. यहाँ पर देखो ये सिंगल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो, इसको भी सिंगल कैपेसिटर से लगा दो, रिप्लेस कर दो. तो ये 20 है, इधर का भी 20 है, तो ये 40 हो जाएगा, है ना. लास्ट में क्या बचेगा? ये वाला 40 और ये 40, दो बचे 40 के. तो फिर से वो C/N वाला फॉर्मूला, और सिंपली यू कैन फाइंड आउट सीरीज में है ये 40/2 20 आ जाएगा. तो लेट्स सी द इक्विवेलेंट सर्किट. एक अभी अगर नहीं समझ में आता है इतना एक साथ, तो थोड़ा थोड़ा करके करो. पहले इसका कर लो, ठीक है, फिर देखो बाकी से, और फिर इन दोनों का अलग से कर लो, फिर सर्किट को सिंपल कर लो. तो आई हैव ड्रॉन द वेरियस. ओके, इसमें एक में ही ड्रॉ कर दिया हमने. चलो देखते, चलो एक साथ ही ड्रॉ किया है, बिकॉज इट वॉज स्लाइटली क्लियर पिक्चर. तो देखो इसको मैं जस्ट आई विल शिफ्ट इट हियर. देखो, कैन यू सी नाउ? तो ये जो थे ये वाले डायग्राम्स, ये कैपेसिटर, दिस ये एक साथ आ गए ऊपर वाली ब्रांच में, और ये 10 वाला बीच वाली ब्रांच में, और ये वाला. बिकॉज ये कनेक्शन देखो, इफ ये कनेक्शन यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो दिस कनेक्शन कैन बी गिवन हियर, और इसका कनेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई कैपेसिटर होता है फिर थोड़ा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है. बट इन प्लेस ऑफ दिस कनेक्शन हियर, दिस कनेक्शन गो हियर, बिकॉज यहाँ पे नो कैपेसिटर इज देयर. यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो दिस कनेक्शन कैन गो हियर. तो बीच वाला ये आ गया 10, और ये वाला यहाँ पे आ गया नीचे, और ये 40 वाला यहाँ पर आ गया, और B पॉइंट इज हियर. तो अभी ये तीनों सीरीज में हो गए. तो इसका कितना आ जाएगा? इसका जो है 20 आ गया. नाउ 20, 10 एंड 10.
20, 10 and 10 all three are in parallel, इसका 40 आ गया, तो ये वाला 40 अपनी जगह है और इसका सबका मिलके 40 आ गया, तो यहाँ पे लगा दिया हमने। नाउ 40 40 इन सीरीज, तो 40/2 हो जाएगा, है ना। 1/C AB विल बी 1/40 प्लस 1/40, तो ये हो जाएगा 2/40, तो 1/20 रेसिप्रोकल कर देंगे तो 20 आ जाएगा, या फिर वही C/N वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा। तो दिस कम्स टू बी 20 द फाइनल आंसर, ठीक है। और नेट चार्ज निकालना है तो नेट कैपेसिटेंस सी नेट लिखेंगे, सी नेट लिखो या CAB लिखो, जो सिंबल होते हैं वो हम यूज करते हैं, या फिर सी नेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, Q नेट इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी नेट इंटू V, इट कम्स टू बी 2 × 10⁻³ कूलाम, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 मिली कूलाम लिख सकते हैं। गॉट इट। तो देखो इसको कुछ डाउट हो तो पूछ लो। Anything you want to clarify here, you can go ahead. पहले इसका निकाल लिया था ऊपर वाली ब्रांच का, CS सीरीज में है तीनों, तो 60/3 20 माइक्रोफैरड, और ये फिर 20 हो गया, यहाँ पे सबको हटा दो, फिर सिंगल 20 से कनेक्ट कर दो, तो ये 20 ये 10 ये 10, तो उनको ऐड कर लिया, 40 आ गया। फिर इस सबका 40 आ गया, तो यहाँ पे दिखा दिया, और ये 40 एज इट इज। अभी दो कैपेसिटर बच गए फाइनली, 40 40 इन सीरीज, एंड उनका नेट 20 आ गया। डन। We'll see some more questions, similar questions, one by one. देखो फर्दर देखते, ये कैसे करेंगे, देखो okay, let's see the question first. Total capacity, capacity means capacitance, है ना। ऑलरेडी वी आर बिगनिंग में मैंने बताया था, of the system of capacitors shown in the figure between point A and B, ठीक है। तो this is 2, this is 2, this is 1, this is 1, this is 2। तो इसमें जो है जनरली वी डोंट कम टू नो कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो इसमें जनरली जो दूर वाला जो एंड है, कहीं पे कॉर्नर, जो फारदेस्ट कॉर्नर है, वहां से देखो तो यू विल गेट द क्लू। और देखो बैटरी की रिस्पेक्ट में सोचना पड़ता है। अभी जब व्हेन वी से AB, तो यहाँ पर बैटरी पहले कनेक्ट कर लो। व्हाट यू डू, कनेक्ट द बैटरी देन यू थिंक, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे फिर। AB बोला है, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो AB पर। ऑलराइट, जस्ट लेट मी ड्रॉ द बैटरी विद द डिफरेंट कलर। रेड से ड्रॉ करते या पिंक से ड्रॉ करते, चलो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। नाउ यू कैन थिंक, उसमें भी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ भी इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो। ऐसा सोच लो कि देयर इज द बैटरी कनेक्टेड हियर, देन थिंग्स बिकम इजी। नहीं तो सीरीज एंड पैरेलल में थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी कनेक्ट कर ली बैटरी, देन थिंग्स बिकम्स मोर क्लियर एज कंपेयर टू व्हेन देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड। और जिस पॉइंट से पूछा है उस पॉइंट पे बैटरी कनेक्ट कर ली हम लोगों ने। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से सीरीज है, कौन से पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं इनको, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। तो कैन एनीबडी टेल मी कि कौन कुछ दिख रहा है हमें कहीं पे सीरीज या पैरेलल,
is there any part of the circuit which is giving indication that they are either in series or in parallel? So C1 and C2 are in C1, series. C1 and series. And C1, C2 and C4 are in parallel. C5 and नहीं, C3 नहीं, are in series. नहीं, पहले कौन से सीरीज में है वो बताओ, Sir, या C1 पैरेलल में, क्लियर कट सीरीज में या पैरेलल में? Sir, C1 and C2 are in series. ओके, ठीक है, और कुछ एनी अदर क्लू? C5 and C3 are in series. C5 and C3 cannot be in series. नहीं, इसमें C5 and C3 हम बोल ही नहीं सकते सीरीज है कि पैरेलल है, बिकॉज सीरीज में कैसे सीरीज में यहाँ पे देखो एक वायर इधर जा रही है, आर द चार्ज सेम, इस पे जो चार्ज है और इस पे चार्ज सेम है, कैन वी से नो? Even if they are same, but they cannot be in series unless they go one after other. अगर ऐसा होता, सपोज ये बैटरी यहाँ नहीं होती, चलो यहाँ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, इसका सेकंड पार्ट ये मैं पूछूंगा आफ्टर यू कंप्लीट फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी, तब जो है देन इट कुड हैव बीन इन सीरीज, ऐसा यहाँ से जो चार्ज आएगा इधर जाएगा, बट एट दिस मोमेंट दे आर नॉट इन सीरीज, ये सीरीज में नहीं है, बिकॉज इसमें तो यहाँ से जो चार्ज आएगा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा सपोज इसमें Q1 गया, दैट यू कैन से Q1 जो इधर गया, देयर इज नो अदर वे टू गो, इट हैज टू कम हियर। तो ये हम बोल सकते हैं ये जो लास्ट टू है C1 एंड C2 दे आर इन सीरीज, नथिंग एल्स, और कुछ क्लियर नहीं है। तो इसको हम जब सीरीज में इसका नेट निकाल लेंगे तब हम आगे देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, एक साथ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसका देखो नेट, इसका नेट निकाल लो, कितना आएगा, 2 and 2 1 आ जाएगा, ये है ना, CY 1/2 + 1/2 = 1/CS, तो 2/2 तो 1 आ जाएगा, या फिर वो वाले फॉर्मूले से C/N, तो C कितना है 2, N कितना है 2, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का 1 आ गया, तो इसको सिंगल कैपेसिटर से यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ऐसा 1 माइक्रोफैरड का, है ना, दोनों को हटा के, देन यू गेट द फर्दर क्लू। उससे ज्यादा क्लू अभी नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो एटलीस्ट यू आर श्योर दैट ये वाले जो है C1 एंड C2 आर इन सीरीज, उसका नेट निकाल के फिर एक और डायग्राम बनाओ विदाउट चेंजिंग ईयर, ये सब चेंज मत करो, ये अपनी जगह रहने दो। तो लेट अस सी, डिड आई एम नॉट टेलिंग यू कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू सर्किट। ओके, यहाँ से मैं, लेट मी ब्रिंग द सर्किट हियर, ऊपर लेके आता हूँ। देखो व्हाट आई टोल्ड यू, इसका नेट कितना आ गया, 1 आ गया, तो उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, और ये C4 कितना दिख रहा है यहाँ पर, C4 इज 1 गिवन, यहाँ पे दिखा देखो। तो नाउ यू कैन सी, अभी बताओ। ओके, नाउ फॉरगेट ये, ओके एक मिनट छोड़ा, लेट मी रिमूव दिस पार्ट्स अगेन। नाउ कैन यू सी दिस डायग्राम, नाउ कैन यू टेल मी, ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है ये, बोलो। एसी सर्किट का नेक्स्ट डायग्राम ये आ गया। नाउ कैन यू टेल मी, कुछ दिख रहा है सीरीज पैरेलल अभी? ये C4 था अपनी जगह, लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर, है ना। तो ये कौन सा था, C4 कौन सा बीच वाला था, ये C4 है, और ये कौन सा है, C5 है यहाँ पर, और ये C3 है, और ये कौन सा है, C12 का नेट आ गया, दिस इज C12 का नेट है। तो अभी कुछ दिख रहा है तुम्हें, सीरीज पैरेलल कुछ दिख रहा है? Sir, C12 will be in parallel with C4. हाँ, यहाँ से देखो, ये एंड, इसका एंड और इसका एंड, ये जो है ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये कनेक्टेड है टुगेदर, इधर से भी कनेक्टेड है। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली ये दोनों दे आर इन पैरेलल, यस और नो, पैरेलल में है। देखो ये 1 and 1 2 हो जाएगा ना। तो उसके बाद फिर अभी और कुछ नहीं, हम आगे वी कैन नॉट से एनीथिंग। और क्या है, इफ यू फर्दर ट्राई टू डू इट, इट मे गो रॉन्ग। तो अनलेस यू हैव द प्रैक्टिस फॉर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, डोंट गो डायरेक्ट, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। देखो अभी तुम्हें
अभी जैसे ये लग रहा था C5 एंड C3 सीरीज में, बट दे आर नॉट। तो अभी ये दोनों पैरेलल में है, दिस मच इज श्योर। तो 1 and 1 2 कितने हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है 2। तो इन दोनों को हटा दो यहाँ से, इन दोनों को हटा दो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो और जिसमें 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दो। देन यू विल गेट द नेक्स्ट क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो देखते अभी नेक्स्ट डायग्राम कौन सा हमारे पास, ये वाला है। इसको एक बार थोड़ा नीचे कर दो। नेक्स्ट डायग्राम इज दिस। तो इनिशियली यू हैव टू बी, you do it like this, after that you can just single diagram से काम चला सकते हैं बाद में, not now. If you are sure then you can go direct, otherwise make the 2-3 diagram initially. Let me just make it bigger. तो देखो अभी नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये कौन कौन सा अपनी जगह है देखो। नाउ ये दोनों मिलके क्या होगा, 2 हो गए। और ये C3 को हमने चेंज नहीं किया, C3 अपनी जगह है और C5 भी अपनी जगह है। ये C3 है, ये C5 है। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है Sir, 2 and C3 are in series. हाँ देखो, ये वाला जो है, ये 2 जो नेट आया किसका किसका था, 1 2 and 4 का जो नेट था, ये वाला। दिस 2 यहाँ से देखो अभी चार्ज आएगा, क्यों जो भी चार्ज आएगा यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से आया, there is no other way to go, it will come like this। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q और यहाँ पे जो Q है सेम रहेगा। तो दिस यू कैन से क्लियरली, दिस एंड दिस, ये किसका था, दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 2 and 4। 1 2 and 4 का जो कॉम्बिनेशन था वो C3 के साथ सीरीज में है, पैरेलल नहीं है ये, इट इज नॉट पैरेलल। व्हाई, बिकॉज जो चार्ज यहाँ से आ रहा है ऐसा, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज 2 and 2 सीरीज अभी हमने ऊपर निकाला था 1 हो जाएगा। तो दिस कम्स, इसका 1 जो है यहाँ पे आ गया। अभी कौन सा बचा, C5 है ना, तो उसके साथ पैरेलल दिख रहा है। तो लाइक दिस यू हैव टू मेक द at least 2-3 diagrams till you get the confidence। तो फाइनली ऊपर वाला सर्किट ऐसा बन गया देखो। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख देते हैं। आई एम गिविंग यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टाइम हो गया है। तो फाइनल आंसर CAB कितना आ रहा है, नेट कैपेसिटेंस CAB विल बी 2 माइक्रोफैरेड। आंसर क्या है यहाँ पर, 2 माइक्रोफैरेड कहाँ पर है, बी आंसर। ठीक है, ओके और नॉट। Anything you want to ask? Now my इसका सेकेंड पार्ट भी है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। Let me write here second part. Find net capacitance between AD, A and D. Now what you have to do, इसमें क्या करना पड़ेगा, just give me 1 more minute. I am giving you 1 more minute to note down। और ये सेकेंड पार्ट भी समझा देता हूं मैं। Okay, this is the original diagram. Let me copy it from here and bring it here. Do it quickly, ये हो गया। Okay, it is here only, diagram तो ये है यहाँ पर। I am showing it here now। देखो, अच्छा इसमें लास्ट में समझ में आ गया था, ये दोनों पैरेलल में बच गए थे। इनका जो है 1 2
1 2 3 4 का जो है सबका मिला के 1 बचा था और C5 वाज हियर इटसेल्फ, दोनों ऐड हो गए सिंपली, दिस वाज C5, ठीक है। और ये किसका था? 1 C1 2 3 4 का नेट था। नाउ व्हेन आई आस्क यू सेकंड पार्ट जो मैंने यहाँ पे पूछा, देखो ऊपर देखो A एंड D, ए एंड डी में क्या करना पड़ेगा? ओके, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं इसको सिंपल कर देता हूँ डायग्राम को। व्हेन ए एंड डी इज आस्क्ड, तो ये ब्रांच मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। ओपन ब्रांच का कुछ, जैसे ये ब्रांच ओपन रहेगी, इसका कुछ यूज नहीं रहता। यहाँ अभी क्या करना है मैंने, व्हाट आई टोल्ड यू, कनेक्ट द बैटरी हियर, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लो डी के साथ, ऐसा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, इसमें मैंने डी के साथ एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी आर कनेक्टिंग द बैटरी हियर, ऐसा। नाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट नाउ, कैन यू सी? यहाँ से जो चार्ज आएगा वो पूरा इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में रहेंगे। इधर से जो चार्ज आएगा अभी, इट हैज टू गो हियर, ऐसे चार्ज, तो ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे अभी, है ना। तो इट इज बेटर टू कनेक्ट द बैटरी, imaginary battery, then you start solving, then things become more clear as compared to original diagram, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। क्या निकल रहा है? फाइंड CAD, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A and D, ठीक है। यू कैन सी सेपरेट डायग्राम। Okay, that's all from my side. Sir, shift me the host. Okay, sir. इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से। All right.